स्थान स्थान पर पहरा देने के लिए अपना आदमी नियुक्त कर गो निषाद आप भी श्री लक्ष्मण जी के पास बैठकर पहरा देने लगे। श्री राम सीता को पत्तों के बिछौने पर सोए देख गो निषाद को बड़ा दुख हुआ। वे इसके लिए कैकेयी को दोष देने लगे। यह सुन लक्ष्मण जी कहने लगे, बोले लखन मधुर मृदु बानी ज्ञान विराग भगति रस सानी। श्री लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति रस में सने कोमल मधुर वाणी से बोले, काहू न कहो सुख दुख कर दाता निज कृत करम भोग सुनु भ्राता। हे भाई सुनो, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। जोग वियोग भोग भल मंदा हित अनाहित मध्यम भ्रम फंदा। मिलना बिछुड़ना, भला बुरा फल भोगना, मित्र शत्रु और मध्यस्थ सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मरण लगी जग जालू संपत्ति विपत्ति करम कालू। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति कर्म और काल जहाँ तक संसार के जाल हैं। धरनी धाम धन पुर परिवारु सरग नरक जा लगी व्यवहारु। धरती घर धन गांव परिवार स्वर्ग और नरक का जहाँ तक व्यवहार है। देखिय सुनिय गोनीय मन माही मोह मोल परमारथ नाही। जो देखे सुने और मन में विचारे जाते हैं उन सबों का कारण अज्ञान ही है। ये परमार्थ है अर्थात तत्व वस्तु पाने के कार्य उपाय नहीं है। सपने हो भिखारी नृप रंकनाकपति हो
जागे लावन हानि कछु तिमि प्रपंच जिय जोई। स्वप्न में राजा भिखारी और दरिद्र इंद्र हो जाता है, पर जग जाने पर न तो राजा को कोई हानि होती है और न दरिद्र को कुछ लाभ होता है। ऐसे ही संसार को मन में स्वप्नवत जानो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं अपने सदगुरु महर्षि मेघे परमहंसी महाराज को सत सत नमन करता हूँ। पुनः आप महान सपूत पूज्यपाद बाबा के श्री चरणों में सत सत नमन करता हूँ। मंच पर विराजमान स्वामी नरेशानंद जी महाराज एवं साधु महात्मागण और आप तमाम धर्म प्रेमियों, सबको मेरा बारंबार नमस्कार है। आप लोगों ने सुना पाठ में क्या हुआ, सबके सब जानते हैं। मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार आपको सुनाता हूँ थोड़ी देर टूटी फूटी भाषा में। आप लोग नाराज नहीं होंगे जो मैं आपको सुनाऊंगा, कुछ अंग्रेजी में सुनाना है। श्री सद्गुरु You heard some lines from the great religious book Ramcharitmanas. The one part of a long story. God incarnate Ramji is in the forest with her wife Sita ji. This is the time of night when they were sleeping on the earth on the bed of leaves. His obedient and wise brother Lakshman ji was awake and walking from here to there to protect them. Somehow
one devotee of God Ram comes to this place and seeing the condition of God Ram repents and says some abuses to his mother, stepmother Kaikeyi. She is the cause of this. Means God Ram and his wife are living in a sorry state in the forest. This is not because Rama and Sita, but because of their stepmother Kaikeyi. After saying some words, he stops, means his devotee Nishad Raj. Lakshmanji starts saying, "Oh my dear, really it is not so. It's not so that the mother of God Ram is the cause for this condition, this sorrowful state. But everyone is responsible for their own condition, for their problems, happiness and sorrows." Once Swami Ramtirth, who was a renowned sannyasi of India, said to his friends, "Arise and we get involved in them. We can't do the thing which is right, which is perfect, which is the best and the greatest for us. If we commit bad actions, we have to face, we have to suffer a great deal of sorrows. And at that time, we are deeply disturbed. We can't decide, we can't follow the right path. And we do what mustn't be done. We don't do what must be done. In this way, we get astray. We lead ourselves astray. We go far from the path, and we have very less and less time to think over the fact, the truth, God, meditation. Everything which may be worst is done by us, and everything which is best and which is must is neglected and ignored by us. For this purpose only, this recitation was recited out, these lines were said here. Means we have to face the result of our actions, and we can't avoid this fact. Nobody can avoid this fact. And there is an example here. God himself is facing disturbances, problems, lack of peace, and he is living the life full of sorrows in the forest. This is an example. Maybe this was the drama played by God, maybe, but this is to make the human society, the humanity, to understand this fact that if anybody, that may be anyone in the world, that may be anyone, prime minister or an ordinary man or woman, anyone may be,
but they will have to face the consequences of their action. So we must do anything after a great deal of consideration, thoroughgoing discussion of anything. We must not be heedless. We must not be heedless or inconsiderate when we start doing anything, but we must consider deeply, think deeply time and again, and follow the rules which have been shown, which have been fixed by great personalities, saints, rishis, maharshis, and which are written in great religious books. We must not neglect it. We must follow. As you sow, so you reap. It can't be contested, refuted. It is a fact. If you sow the seeds of wheat, means if you sow wheat, what you get? यदि आप गेहूं बोते हैं तो क्या पाते हैं? गेहूं ही पाते हैं. If you sow paddy in the field, what you get? You get paddy. You sow wheat and you get paddy, it is not. So we must correct our actions. We must not be heedless. We must pay total attention to our actions. And what we should not do? Which are harmful, which are dangerous, which are pernicious, which prevent us from getting near and near the truth God. Those actions must not be done. And which encourages us to go near God. Those actions must be done. Those actions must not be avoided. What are those things? According to Maharshi Mehi Paramahansa Maharaj, lust, anger, greed, and so many mental things that we do perform every day must be avoided totally. And those actions which lead us to our aim, which are what? Truth, saying the truth, devotion to God, have patience to show kindness, meditation, and all the rest of it. These things must be done. In this way, we will correct our life and we will lead ourselves to that place where we can feel satisfied, where we can get happiness. So this is the thing we have to take into deep consideration, and if we do in this way, our life may be successful. And if we don't pay attention to our actions, we must fail one day and we will repent for what we are doing now. We have to take every consideration to be correct, to be perfect, to be right in our actions. This is the theme of this recitation, those lines which were read. And we are fortunate enough that we are before a great disciple of our great master Maharshi Mehi Paramahansa Maharaj. I want to say, everyone here, I am at this time not in the line, I am saying something different. Here, you all every day sit before a great disciple of great master, Swami Bhagiradas Ji Maharaj. All of you are fortunate. You'll say why? What's the cause? We are all fortunate. Why? Yes, we are fortunate because
great Baba, Pujyapad Baba, Swami Bhagirath Das Ji Maharaj, is an example of purity, truthfulness, lack of greed, meditation, and all those qualities and specialities which can make even the worst man into the best man, into the best humanity. I have seen so many personalities in this country. I have seen so many people, great speaker, but they lack so many things. I don't say that they are not great. They may be great and there are so many great personalities. But there are very few, and one of them, the rarest of the rare, is our Baba Swami Bhagirath Das Ji Maharaj. He is full of kindness, full of truthfulness, lack of everything which can disturb our life. He is an example of greatness. So we must follow him, and that is the cause we sit very silently, peacefully, and when we sit before him, we feel satisfied of ourselves and we don't get disturbed. So we are fortunate enough, and we are very, very fortunate that we sit before him and get more and more benefits from him. So we must sit before him, take his message and follows the path shown by him. We must do it, we must follow him, and the message what he sends to us, those messages will change our life. So we must do that, and I think I have said so many things. I must stop just now, but one thing which I would like to remind you, of which I would like to remind you all, that our actions must be right, must be good, then our life can be good, and only then we can fulfill the aim of our life, or there is no path that we can correct our life and get the highest aim of life. That is the greatest obstruction to the fulfillment of the object of life. We must follow that. बोलिए श्री सद्गुरु बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग शांति पूर्वक बैठे। पूज्यपाद का आदेश है कि हिंदी में उसको बता दो संक्षेप में। मेरे कहने का मतलब यही था, पाठ के अनुसार भगवान राम जंगल में हैं, सीता जी हैं साथ में पत्ते के बिछावन पर, लक्ष्मण जी पहरा कर रहे हैं, उनके भक्त आए हैं निषाद राज,
और वो स्थिति देखकर दुखी होकर के कैकेयी को जिम्मेदार ठहराते हैं। कैकेयी के चलते भगवान को दुख हो रहा है, लेकिन लक्ष्मण जी समझदार है और वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है, बल्कि हर एक आदमी अपने कर्मों का फल खुद भोगते हैं। इसलिए आप कैकेयी पर दोष मत लगाएं। इन्हीं सारी बातों को कहते हुए मैंने कहा था कि इस प्रसंग को क्यों छेड़ा जाता है। इसलिए कि हमें भगवान को पाना है, ईश्वर को जानना है, सत्य को जानना है, और इसको जानने के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं हैं। उनमें से एक बाधा यह भी है कि हम नहीं जानते कि कर्मों का परिणाम कैसा होता है, नहीं होता। हम उल्टा सीधा जानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि कर्मों का परिणाम हमें नहीं भोगना पड़ता है, लेकिन भोगना पड़ता है, और हम लोग प्रायः बुरा कर्म ही किया करते। इसलिए बुरा कर्म को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को भी उसका परिणाम जब भोगना पड़ा। मान लेते हैं भगवान ने नाटक ही किया दुनिया वालों को, लेकिन समझाने के लिए किया कि यदि मैं गलत काम करूंगा तो मुझको भी भोगना पड़ेगा और आप लोगों को भी भोगना पड़ेगा, और गलत कर्म का परिणाम जब भोगेंगे तब क्या होगा? परेशान होंगे, बेचैन होंगे, हम फंस जाएंगे। तब ध्यान भजन सत्संग हम कब करेंगे, कब हमें समय मिलेगा? तो हम बर्बाद हो जाएंगे। और उसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पर एक उदाहरण है पवित्रता का, शांति का, सच्चाई का, अच्छाई का, जो कि हमारे महर्षि सदगुरु में ही परमहंस महाराज के महान सपूत हैं, पूज्यपाद बाबा। और इस तरह के महापुरुष कम मिलते हैं कम मिलते हैं। मैंने बहुत जगह देखा है, तो ये उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। इसलिए हम लोग सबके सब भाग्यशाली हैं। इनसे भी सीख सकते हैं कि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहिए, सच्चा बनाना चाहिए, और इनके उपदेश आदेश को अपने जीवन में धारण करके अपने जीवन को सफल करना चाहिए। यही मैंने कहा था। बोलिए श्री सद्गुरु। आवाज गड़बड़ा गई भाई। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुवचन रवि कर निकर। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। रेवरेंड, respectable coming gentlemen, my dear devoted dignitaries, especially the guest sister arrived from oceans across, 7 oceans across United States of America, and my dear mothers and all sisters. I am standing here not to give lecture, but I was given an instruction by Guru Sevi Swamiji Maharaj to say something in English. I am speaking here with the blessings of him. My mouth is lip-syncing with the power of Guru Sevi Swami Bhagirath Das Ji Maharaj.
each and every person of this world wants pleasure, wants happiness. No one wants to obtain sorrow and suffering, but one wants happiness, one wants pleasure, but follow the path of suffering and sorrow. How can one gets the happiness, the pleasure? Ramcharitmanas says, Sant Sang Apvarg Kar Kami Bhav Kar Panth. There are two ways, there are two paths. On following one path, one leads to pleasure, and one path leads to sorrow and suffering. One has to choose in which direction we want to proceed. If we want to proceed to happiness, we follow the path of Sant Sadguru. What Sant Sadguru says? In government organization, there is a model code of conduct, civil code of conduct, what to do and what not to do. In spiritual sphere, Sadguru says what to do and what not to do. We should follow the direction of Sant Sadguru. After following the path of Sant Sadguru, we knows what to do and what not to do. What to do? We should do meditation. We should live with etiquettes. We should live good, with good character. We should eat healthy and the food which are not get by hurting anybody else. This is the actions which have to be done, and which the action which are not to be done, that is not telling a lie. झूठ नहीं बोलना, telling truth, not stillness, not to steal, not intoxication, not to smoking, not indulge in taking drugs. We have to follow the path of non-violence. We should not hurt anybody else. And we should practice the celibacy, the brahmacharya, the celibacy. In celibacy, we should not give a wrong sight, wrong vision on others, sisters and wife. This is the actions we should abstain from. We should not follow this. Because karma, the actions, is the main pillar of our life. कर्म हमारे जीवन का प्रमुख स्तंभ है. Karma is the actions are the main pillar of our life. What we want to be, we should follow that right path. And to follow the right path, the Sant Sadguru says, the key action, the base action. What is the action which is best for all the pleasure and happiness? That is meditation. ध्यान, मूल ध्यान गुरु रूप है. What our spiritual master says, that meditation we should follow, we should practice. When we concentrate our mind at one point, we feel peace, steadiness. In general way, in general life, when we concentrate ourselves, when we
concentrate at a point, when a student concentrate themselves, they practice very much. They remember their lessons very much. In this way, we should go in the direction of one-pointedness, ek binduta. And one-pointedness comes from Drishti Yoga, the yoga of vision, the divine vision. And for attaining the one-pointedness, Manas Jap, the reciting the name of God and visualizing the figure, the picture of God that is given by spiritual master, this is the process to attain one-pointedness. But base is the one-pointedness. We should practice one-pointedness, and after one-pointedness, we leads to the practice of divine sound, the primordial sound which comes from the God, which created before God. At the first, sound was abrupted. Sound was with God. Sound was God at last. This is the action, this is the karma we should follow. Nothing else other than the Santmat, Sant Sadguru Maharshi Mehi Paramahansa Ji Maharaj has given a synopsis, has summarized the knowledge of all the saints throughout the world, that Manas Jap, Manas Dhyan, Drishti Yoga and Sabd Yoga. This is the basic pillar of our meditation. We should follow. This is the real action. This is the real karma. We should follow. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद. श्री सद्गुरु महाराज की जय. कि हमारे जीवन का मुख्य आधार शांति है, सुख है. सभी चाहते हैं कि हम सुख पाएं, शांति पाएं, कोई दुख नहीं चाहता है. लेकिन हम कौन सा रास्ता पकड़ेंगे यह हम पर निर्भर है. अगर सुख चाहते हैं तो सुख के रास्ते पर चलना है, दुख चाहते हैं तो दुख के रास्ते पर चलना है. इसी में गोस्वामी जी कहते हैं कि संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ. अगर संत का संग करेंगे तो सुख मिलेगा और कामी का संग करेंगे तो दुख मिलेगा. यह हमारे कर्मों पर निर्भर है. इसलिए हम ऐसा कर्म करें जिससे हमें सुख मिले. दो तरह के कर्म हैं. हमारे भारत के सरकार या कोई भी सरकार भी करती है अपने कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, कि क्या करना है या नहीं करना है. उसी तरह हमारे संत सद्गुरु बताते हैं कि क्या हमें जीवन में करना है और क्या नहीं करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है. करना क्या है तो संत सद्गुरु की बातों पर चलना है, उनकी वाणियों का अनुसरण करना है, ध्यान करना है. क्या नहीं करना है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार नहीं करना है. इसलिए हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अपने जीवन में सुख और दुख मिलता है. इसलिए हम लोगों को संत सद्गुरु की बातों के अतिरिक्त और किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संत सद्गुरु का ज्ञान ही आधार ज्ञान है, जिसमें मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सूरज शब्द योग है. मानस जप और मानस ध्यान यह हमें एक बिंदुता की तरफ ले जाता है. दृष्टि योग करने का एक माध्यम है. असल में तो दृष्टि योग और शब्द योग है, लेकिन मानस जप और मानस ध्यान जब करते हैं तो धीरे धीरे बिंदुता की तरफ हम बढ़ते हैं. एक बिंदुता की जरूरत हमारे छात्र जीवन में भी है. अगर कोई छात्र कंसंट्रेशन के साथ, एक बिंदुता के साथ, एकाग्रता के साथ अगर पढ़ता है तो वो जल्दी याद होता है. उसी तरह हमें एकाग्र होंगे, एकाग्रता के साथ ध्यान करेंगे तो हमें शांति मिलेगी, हमारा चित्त स्थिर होगा. इसलिए हम लोग संत मत की बातों के अनुसार, सदगुरु की बातों को, विचारों को माने, उसके अनुसार ध्यान साधना करें. बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय.
ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। पूज्यपाद के श्री चरणों में कोटि सनमन। पूज्यपाद गुरुजन, उपस्थित माताओं एवं भक्तिमती बहनों, मुदमंगलमय संत समाज, अभी हम लोग कर्म के विषय में पाठ और प्रवचन में सुन रहे थे। संवाद है जमदूत और भगवान विष्णु के दूत का संवाद। मनुष्य कर्म करते हैं शरीर के द्वारा, मन से और वचन से। जो पाप कर्म करते हैं, कोई मन से पाप करते हैं, कोई वचन के द्वारा पाप करते हैं, कोई शरीर से पाप करते हैं। इन जो पाप करते हैं इसका साक्षी कौन कौन है? जो हम मन वचन कर्म से जो कर्म करते हैं इसका साक्षी कौन है? तो कहा सूर्यो अग्नि खम मरुद गाव सोम संध्या अनिदिशः कम को कालो धर्मम इति हेति दह्यस्य साक्षी। इस शरीर से, मन से, वचन से जो कर्म किए इसका साक्षी कौन है? का सूर्य है। सूर्यो अग्नि, और अग्नि साक्षी है। खम मन आकाश साक्षी है। सूर्यो अग्नि खम मरुद गावः, मरुद कहते हैं वायुदेव को, वो भी साक्षी है। गावा मतलब इंद्रियां, हमारे 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां, ये सब साक्षी होते हैं। कम को कालो धर्ममिति, कम मतलब जल, जल भी साक्षी है जो हम कर्म कर रहे हैं। कम को माना पृथ्वी, पृथ्वी भी साक्षी है हम जो कर्म कर रहे हैं। कम को कालम धर्ममिति, काल कहते समय को, समय भी साक्षी है और धर्म साक्षी है। जो जीव कर्म करते हैं, आप बाद में कहेंगे हमने नहीं किया है, ये सब साक्षी है। सूर्य है, अग्नि है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, धर्म है, ये सब साक्षी है। तो इन कर्मों से जो कर्म किए हैं इससे उद्धार कैसे होगा, इससे कल्याण कैसे होगा अपना? बताया क्या? तपस्या के द्वारा। तपसा ब्रह्मचर्येनो, ब्रह्मचर्य के द्वारा। तपसा ब्रह्मचर्येनो समेनो दमेनो च, सम कहते हैं मनो निग्रह के द्वारा, अदम मतलब इंद्रियों के दमन के द्वारा। तपसा ब्रह्मचर्येनो समेनो दमेनो च त्यागेनो सत्य शौचाभ्याम, त्याग के द्वारा। और शौचाभ्याम मतलब अंदर बाहर से पवित्रता के द्वारा। त्यागेनो सत्य शौचाभ्याम यमेनो नियमेनो च, यम नियम के द्वारा। यम में क्या आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य। और नियम क्या आता है? शौच,
संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। कहते हैं इसके द्वारा, जैसे आप लोग देखे होंगे बांस का झुरमुट होता है ना, आपस में घर्षण करने से उज्जल करके भस्म कर देता पूरे बांस के बाड़ी को। कहा उसी के द्वारा, उसी तरह तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, यम नियम के द्वारा, समदम के द्वारा सभी पापों को नष्ट कर देता। जैसे हम लोग बर्तन मांजते हैं ना, तो झामा के द्वारा बर्तन को साफ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, उसी प्रकार भक्ति के द्वारा हम लोगों का अंतःकरण पवित्र हो जाता है। इसलिए कर्म से अगर पाप से बचना चाहते हैं, एक ही उपाय ध्यान करने के लिए, यदि शैल समम पापम विस्तृणम बहुयोजनम विद्यते ध्यान योगी नान्यो भेद कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ अगर पूर्व जन्म का पाप है, वो ध्यान योग से नष्ट होगा और पापों का नाश करने वाला कभी कुछ नहीं होगा। मुहूर्तमपि योगच्चन नासाग्रे मनसा सह सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सुतार्जितम। मुहूर्तमपि, थोड़ा देर भी नासाग्र में, अज्ञा चक्र में अपने वृत्ति को स्थिर कर लेता है जो साधक, क्या होगा? मुहूर्तमपि योगच्चन नासाग्रे मनसा सह, मन के सहित नासाग्र में स्थिर हो जाए। सर्वं तरति पापानां तस्य जन्म सुतार्जितम, सभी पापों से वो पार उतर जाएंगे। तो हम लोगों को इन कर्मों से बचने के लिए संतों से युक्ति जान करके एक नाम का जप करें, एक रूप का ध्यान करें, दृष्टियों नाद अनुसंधान करें, तो परम कल्याण होगा। यही आप लोगों से मैं कहा। बोलिए श्री सद्गुरु। So, I am translating the speech delivered by Swami Naresanand Baba. So, he has said just now that today subject of the discourse is karma, that is the action. Whatever we are doing, this is called action. Okay. So, karma means man does various type of actions. It can be good action, it can be bad action. So, we accumulate all these types of action. So we does the actions from our mind, from our speech, whatever we speak, this is also karma. If we speak bad, the other people can feel bad and we hurt them. If we speak good, then other people feel good. Okay. So we do the karma through our speech, through our mind, and through our organs, body. So if you say that who is the observer of these actions we will perform, one day nobody can say no, we have not done this type of action. So somebody is observer. Who is the observer? Who is the testimony of this action? So the sun, the air, the water, the earth, the soil, the time, that is kal and the dharma, all these are observer of these actions, whatever we have done. So later, nobody can say that I have not done this type of action because they have proof that I have done it. We cannot reject that I have not done it. Then if we have performed some actions, then of course it will have consequence. Then how can we get rid of the consequence of these actions? So he said that through the meditation, the power of the meditation can destroy the big mountain of the actions, whatever we have done, bad or good. This is the power of meditation. Along with the sacrification of the lust, desires, all these things can destroy the consequence. Also the following the truth, non-violence, celibacy, self-study of the saints' literatures, and by controlling the mind and body, by devotion and also obeying the statements of Sadguru, we can destroy the consequence of karma.
if we have accumulated the actions, how so much big, like a big mountain, the meditation, the dhyan will destroy all these sins and consequence of these actions. Thank you. कम करिए, नीचे करिए, हटाएगा, हटाएगा, और हटा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो नमो सतगुरु नमो जासम को नवान परम पुरुष होते अधिक गावै संत सुजान। धन्य धन्य सतगुरु सुखदान। महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुमरी कृपा। मोते कछु न बसा। सम्माननीय साधु समाज, साधक वृंदे, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, अपने ही देश में एक उच्च कोट के महापुरुष हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों को उपदेश देने के सिलसिले में कहा, बुराई कुछ है कैसे पावे कोई, रोप बिरवा आग को आम कहाँ से होए। कोई व्यक्ति अपने खेत में, अपने बाड़ी में आग का पौधा लगा दे, समय आने पर अगुए सोचें हमको आम का मीठा फल मिले तो नहीं मिलेगा, आग का ही फल मिलेगा। उसी तरह से जो जैसा कर्म करती हैं, करने वाले को स्वयं भोगना होता है और कई गुना हो के भोगना होता है। जैसे
कोई किसान अपने खेत में 1 क्विंटल गेहूं बॉग करती हैं, बोती हैं, तो समय आने पर कई क्विंटल अपना घर लाती हैं। उसी तरह से अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, उसके भोगने का समय आता है, उसको कई गुना हो करके भोगना होता है। अगर कोई यह सोचे मैंने ऐसा किया, मेरी माँ को बहुत मानती है, माँ भोग लेगी, पिताजी बहुत मानते हैं, पिताजी भोग लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब, ये अयोध्या में हुए थे। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ करे सो आगे आवे। बाप की करनी बाप पूत के पूते भोगे। जैसा कर्म जो करते उनको स्वयं भोगना होता है। पिता करेंगे पिता को भोगना होगा, माँ करेगी माँ को भोगना होगा, पुत्र करेंगे पुत्र को भोगना होगा, और कई गुना होके भोगना होगा। यह भोग कैसे समाप्त होगा? तो देखिए, अच्छा कर्म का परिणाम होता है स्वर्ग जाना, बुरे कर्म का परिणाम होता है नरक जाना। अच्छा बुरा दोनों कर्म बना है, दोनों बंधन ही है। एक सोने की बेड़ी है तो एक लोहे की बेड़ी है। इन कर्मों से हम कैसे बचें? इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुषों के सब कहना है, जिसके द्वारा अच्छा या बुरा कर्म बना है, जब तक उसके संग में रहेंगे अच्छे और बुरे का परिणाम भोगना ही पड़ेगा, दुख से छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छे या बुरे कर्मों का करने वाला अगुआ कौन है? अच्छे या बुरे कर्म करने वाला मन ही अगुआ है। मन अपने देश में कोटि के महापुरुष हो गए भगवान बुद्ध। इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो शिक्षा मनोमया मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेत चक्कं वा भातो पदम। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कार्यों का करने वाला मन ही है, मन ही प्रधान है। अगर कोई बुरी कल्पना से बोलता है या काज करता है तो दुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जिस प्रकार चक्का बैल के पैर के पीछे चलता है, जो बैल उसको स्वयं खींचता है। बुरे कर्म के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा, मनो पुब्बंगमा धम्मा मनो शिक्षा मनोमया मनसा चे प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेत छाया और अनपायनी। पाली में इसका हिंदी अर्थ है, सारे कार्य करने वाला मन है, मन ही प्रधान है। अगर कोई अच्छी कल्पना से बोलता है या काज करता है तो
सुख उसका उसी प्रकार पीछा करता है जैसे मनुष्य की छाया उनके साथ नहीं छोड़ती है। जब तक आप और हम मन के संग में रहेंगे, अच्छे बुरे का जो परिणाम होगा भोगना ही पड़ेगा और कई गुणों के भोगना होगा। अगर कोई इन कर्मों से बचना चाहती है, शाश्वत को प्राप्त करना चाहती है, उन्हें मन से अलग होना होगा। मन से अलग होने के लिए अगर कोई यह सोचे अपने गांव को छोड़ दें, अपने जिला को छोड़ दें, अपने प्रांत को छोड़ दें, अपने देश को छोड़ दें, तो मन से अलग नहीं हो सकती हैं। जहां जाएंगे मन संग में रहेगा। मन का संग छोड़ने के लिए बाहर में नहीं, अपने अंदर में चलना होता है। अपने चलने के लिए क्या करना होगा? अपने अंदर में चलने के लिए गुरु जो मंत्र बता दिए हैं, उस मंत्र को मन ही मन पहले जपना होगा। कुछ देर जपना होगा। जपते जपते जब कुछ अच्छा ऐसा लगने लगे उसको छोड़ देना होगा। इसके बाद गुरु जिनका ध्यान करने के लिए बताए हैं, उनके रूप का ध्यान करना होगा। इसके बाद ये जो हम लोग दो आंखें हैं, और दोनों आंखों से दृष्टि की धार निकल रही है, असमान रेखा निकल रही है। इसको एक करने के लिए महापुरुषों ने कहा। एक करने के लिए क्या करना होगा? तो वहां कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, दिशानावलोकन, दिशाओं को नहीं देखते हुए देखना होगा। 10 दिशाओं में से एक भी दिशा नहीं रहे तब देखना होगा, और समय लगा के देखना होगा। तो देखते देखते अगर दिशाधार सिक जाती है, उसके अंदर में बिंदु का उदय होता है। भाई बिंदु आगे भागे ब्रह्म प्रकाश को दिखाता है, ब्रह्मनाद को सुनाता है। इतना हो जाने पर भी मन संग ही में रहता है। अपने अंदर में जो प्रकाश देखती हैं, ब्रह्मनाद को सुनती हैं, किसके माध्यम से? मन के माध्यम से। वहां मन है। प्रकाश मंडल के अंतर्गत ही एक स्थान का नाम है त्रिकुटी। उसके और आगे थोड़ा ब्रह्म प्रकाश ही प्रकाश दिखाई पड़ेगा। उसके आगे शब्द मंडल है। तो जो योग की बात नादों संस्करण युक्ति सीख करके करती है, इस साधना में आंख बंद, मुंह बंद और कान बंद लगा के करना होता है। इस साधना के द्वारा करते करते जब अपने अंदर में एक नाद की प्राप्ति होती है। एक नाद से मतलब है सार शब्द, जिसको महापुरुषों ने कहा अस्फोट, उद्गीत, प्रणव ध्वनि, राम नाम, उल्टा नाम आदि शब्द। जिस क्षण उस शब्द की पकड़ होती है, उसी क्षण जीव मन से अलग हो जाता है। यहां आने पर
एक नाथ की प्राप्ति होने पर तब वह कर्म मंडल से पार कर गया, कर्मों का फल नहीं भोगना होता है। यह काम मनुष्य जीवात्मा सी का हो सकता है। और किस अवस्था में हो सकता है? गुरुदेव अपने परवश में बोली थी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, अस्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ रहे इसका भी ख्याल रखना चाहिए। और समय पर बैठ करके क्रम से साधना करनी चाहिए। क्रम से मतलब यह है कि एक नाम का जप, एक रूप का ध्यान, शून्य ध्यान, अनिर्दिष्ट योग क्रिया, इसके बाद शब्द साधना कब कब करना चाहिए? महापुरुषों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त में, उस समय शांत वातावरण रहता है, उसको अमृत वेला भी कहा गया है। उस समय जो ध्यानाभ्यास करते हैं उनके ऊपर ईश्वर की दया, परमात्मा की दया होती है। मैं गुरुदेव के प्रवचन में एक व्यक्ति पढ़ रहे थे, मैं सुना, मैं ही पढ़वा रहा था, उसमें आया गुरुदेव अपने प्रवचन बोले, मेरी बूढ़ी नानी बोली थी, पहर भर रात में भगवान शिव सबके घर घर में घूमती हैं, जो जगे रहते हैं उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है, और जो सोए रहते हैं ये आशीर्वाद से वंचित हो जाती हैं। गुरुदेव बोले थे अपने प्रवचन में, तो ब्रह्म मुहूर्त में जग के ध्यानाभ्यास करना चाहिए। इसके बाद दिन में स्नान करने के बाद तुरंत, यानी कि स्नान करके आए और कामों में लग गए, फुर्सत मिला तो पीछे किए, ऐसा नहीं। स्नान करने से मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, उस समय जब ध्यान करने में मन लगता है। तो स्नान करने के बाद तुरंत करना चाहिए। इसके बाद दिन की समाप्ति, रात का शुरुआत, यह जो संधि वेला है, दिन की समाप्ति रात का शुरुआत, इसमें भी करना चाहिए। इसमें जो ध्यानाभ्यास करते हैं उन्हें भी तरक्की होती है। यह वेला जो है बहुत सुंदर वेला महापुरुषों ने बताया है। इस समय जब बैठेंगे, स्थिरता से बैठेंगे, अपने पेट को खाली रखेंगे, तो करते करते मन लगेगा। तो देर तक प्रयास करना चाहिए। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबों का यही कहना है, त्रिकाल संध्या कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त में कीजिए, दिन स्नान करने के बाद तुरंत कीजिए। इसको मध्याह्न काल माना गया है, इसको संध्या काल में कीजिए। इसे करने में सफलता मिल जाए, हम अपने अंदर चल करके मन से अलग हो जाएं, इसके लिए जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए, सबका कहना है कि भाई इसमें संयम करना पड़ेगा। पहला संयम है भोजन का संयम। हमारे गुरुदेव संत बन गए, हमारे गुरुदेव संत थे, इन्होंने संसार के लोगों से कहा, खान पान को प्रथम संभारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। तो भोजन का संयम करना चाहिए।
अगर कोई मन से अलग होना चाहती हैं, कर्मल को पार करना चाहती हैं, अपने परम कल्याण में बनाना चाहती हैं, वे तामसी भोजन नहीं लें, राशि भोजन नहीं लें, सात्विक भोजन लें। सात्विक भोजन में ऐसा भोजन हो जो कब्ज कारक नहीं हो, सुपाच्य हो, और वह भोजन समय पर लें, कुछ समय में नहीं, समय पर लें। अगर कुछ समय में भोजन करेंगे तो पचेगा नहीं, पेट में गैस बनेगा, साधन में तरक्की नहीं होगी। समय भोजन ले लेना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, असमय पर जग के ध्यान करना चाहिए। जो विशेष संस्कारी महापुरुष हैं, ये पूरी रात जग के ध्यान करती हैं। पूरी रात जग के ध्यान करने जो किए, और उनमें से एक संत हैं संत नंदास जी महाराज। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, अगर कोई अपना परम कल्याण चाहती हैं, अपने को परम सुखीमय बनाना चाहती हैं, दिन में काम काज करते समय गुरु के बताए मंत्र को जपते रहना चाहिए, लेकिन रात में जग के ध्यान करना चाहिए। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, दिन को हरि सुमिरन करो, रैन जाकर ध्यान, भूख राखी भोजन करो, तजो सोबन कृवान, चाय पर नहीं जग सके आधी रात सु जाग, ध्यान करो जप ही करो भजन करन को लाग, जो ने श्रद्धा दोपहर पिछले पहाड़े चेत, उठ बैठो रटना रटो प्रसुलाभो हेत, जागे ना पिछले पहर करन गुरुमत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे ताकू लागे पाप। जो मुँह फाड़े सोए रहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, उनके लिए कहा गया उनको लागे पाप। तो जो संतों के कहने के अनुसार चलेंगे और साधना में तरक्की करेंगे, उनके महापुरुषों के दया के पास आएगी। एक संस्मृति सुनाता हूँ। हमारे गुरुदेव पूज्य गुरुदेव महर्षि में परम जी महाराज, पंखा मत कर दो। पूर्वाहन लगभग 11 बजे अपने निवास के बरामदे पर धीरे धीरे टहल रहे थे। एक सत्संगी गुरुदेव को प्रणाम करने के लिए आए, दूर से प्रणाम किए और हाथ जोड़ते बोले, गुरुदेव ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। ऐसे हाथ जोड़ते बोले, दया की जाए। गुरुदेव खड़े होकर को उनको देखने लग गए। देखते हुए बोले कि देखो जी, मेरी दया तुम्हारे पास आती है, तुम सोए रहते हो, वह लौट जाती है। क्या हो गया भाई? वह लौट जाती है, तो हम लोग क्या करना चाहिए? महापुरुष दया प्राप्त करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जरूर जग ध्यान करना चाहिए। अभी समय तो करीब हो ही चुका है। आप लोगों की श्रद्धा देख करके इतना समय बढ़ा दिया गया है। कल भी इसी समय में आरती होगी। अब जो मैं बोला हूँ
समास रूप में आत्म संतोषी जी बोलेंगे। हेलो बोले बेटा, आइए खड़े हो जाइए। Now, now the translation of the discourse delivered by Sant Bhagat Babaji Maharaj. So he has said that there was a great saint in our country. His name is Goswami Tulsidas. He preached to the people of this world that if a person sows a plant of oak, that is the wild tree, then if he desires that he will get the fruit of mango from that wild tree, is it possible? No, it's not possible. If he wants the fruit of mango, then he has to plant the mango plant, right? Mango tree, not the other tree. So in the same way, if the person does the good work, so he will have the result of the good work. But if he does the bad work and he desires that he will get the good result, is it possible? No. So always the bad work give the bad result. In the same way, also if the farmer sows 1 kilogram of wheat in the field, then does he get only 1 kilogram of the wheat as the production from the agriculture? No, he gets more than 1 kilogram. In the same way, whatever action we do, we get the more consequences, more results. Sant Paltudas said that everyone is attached with the result of karma, and everyone is bound with his own karma. If father does the karma action, then the consequence of action will have to be upon his father, not the other person. Therefore, mother will bear the result of karma by her own work, and son will bear the result of karma by his own work. Result of good action is good, and the result of bad action is bad. Each result we have to bear. And then how to get rid of these actions? And this is the reason of the coming and going from this world. That is the reincarnation. This is the actually main cause of the reincarnation. We get birth and death again and again. So until and unless we delete all those karmas, all the consequences of the karmas, till then we get birth again and again. So how to get rid of this transmigration? So through the meditation we can get rid of these results of karmas. Lord Buddha has said that it is the mind who is the principal entity, who is the performer of these karmas. This is the mind. And like wheel in the bullock cart follows the ox feet, okay? In the same way, our karmas follows me. In the same way. Like shadow does not leave the body, in the same way, the result of the good karma, good action, does not leave the people. Then how we will separate from the mind? Mind remains everywhere, and you know that mind is the performer of the actions. Then how we will get rid of this mind? So we need to do whatever Sadhguru instructs. Sadhguru has instructed the Manas Jap. Okay? The first step of meditation, when we recite the mantra through the mind. So we have to repeat the Manas Jap. When we feel something good, then stop it, and then we have to do Manas Dhyan. Manas Dhyan, this is the concentration over the holy face of Sadhguru. So after the Manas Dhyan, we have to do the practice of the Drishti Yoga sadhana. Drishti Yoga, we have two eyes, right? And each eye has its own vision. And both eyes, so there are two visions which travel in the parallel direction. So seeing the divine light, we hear the divine sounds. There is a place, this is the place inside. It is called Trikuti. Saint says that the existence of mind is still there. The mind becomes separate from the consciousness force. Okay? As soon as our
consciousness force will catch the sar shabd, mind will be separate from the consciousness force. Then we will get rid of the mind, and after that we will reach to the nameless state, and we will get salvation, and we will not need to come again and again on this earth or in this body. Then for this, what we have to do? We have to do meditation, right? So at what time? So Sant says that we have to do meditation 3 times. It is called in India Traikal Sandhya. So we have to do meditation at 3 times. First, at the Brahm Muhurt time, that is the pre-dawn time, which starts 3 a.m. in India, which we do generally. So this time is very auspicious. Why? Because the nature is very silent. Entire atmosphere is cool, calm, right? So therefore, at this time, when we do meditation, it is very useful. Second time is after taking bath. When we take shower, immediately after that, we should sit on the meditation. And third is that after the sunset, when the day ends and when the night becomes to start, it is called the sunset time. After the sunset, we should do meditation. This 3 time is called Traikal Sandhya. Pre-dawn time, after taking shower, and third is the after the sunset. Now, to get success in the meditation, we have to control something. First, control that our food. If we take not the sattvic food, then we can get some disease. If our food can cause the gas, then we cannot sit meditation for a long time. So therefore, our food should not be stale, should not causing the constipation. Second, that. And also, if you want to have the greatest welfare, we should do meditation in night. If we cannot sit the meditation, if we cannot sit the entire night for the meditation, then we should sit at the midnight. If we cannot sit for the meditation at midnight, then at least please sit on the meditation at pre-dawn time. And if one does not sit at the pre-dawn time, that is the Brahm Muhurt time, 3 a.m., then he earns sin. In the sense language, he earns sin. So therefore, we must wake up early in the morning, and then we should start practicing the meditation. Once Sadhguru Mehi, when he was present in his body, physical body, in Kuppa Ghat ashram, so he was walking outside his living room. Okay? Then a disciple came to meet him. He paid his regards both to him and also requested that, "Oh, my master, please bless me so that I can progress in the meditation." Sadhguru Maharshi Mehi stared him and then spoke that, "Listen to me, my blessing goes to you, but at that time you remain slept. So therefore my blessings comes back." It means that you can see that what is the importance of the meditation at the pre-dawn time. So pre-dawn time is very, very important time when we should sit for the meditation for our greatest welfare. Thank you. Sri Sadhguru Maharaj ki jai. भजमन सतगुरु 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 जे भजमन सतगुरु सतगुरु सत भजमन जीव चेतावन हंस उबार चेतावन हंस वारन भव भय तारण सतगुरु जे भजमन भव भय सतगुरु जे भजमन सतगुरु सतगुरु
समतमनासन ज्ञान प्रकाशन सन ज्ञान प्रकाशन हृदय सन सतगुरु जे भजुमन हृदय विगा जी भजुमन सतगुरु 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 भजुमन आत्म अनात्म विचार बुझावन आत्म चार बुझावन परम सुहावन सतगुरु जे भजुमन परम सुहावन सतगुरु जे भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन सगुण अगुण ही अनात्म बतावन सगुण अनात्म बतावन पार कहे सतगुरु जे भजुमन पार गुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन मलयनात्मते सुरत छोड़ावन मलब मते सुरत छोड़ावन द्वैत मिटा वन सतगुरु जी भजुमन द्वैत सतगुरु जी भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन पिंड ब्रह्मांड वेद बतावन पिंड ब्रह्मांड वेद बतावन सुरत छोड़ा मन सतगुरु जे भजुमन सुरत सतगुरु जे भजुमन सतगुरु 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 जी भजुमन गुरु सेवा सतसंग दृढ़ावन गुरु सेवा दृढ़ावन पाप निषेधन सतगुरु जी भजुमन पाप निषेधन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु गुरु जी भजुमन सुरत शब्द मार दर्शावन सुरत शब्द मार्ग दर्शा संकट तारन सतगुरु जी भजुमन तारन सतगुरु जी भजुमन सतगुरु सतगुरु गुरु जी भजुमन ज्ञान विराग विवेक के दाता विवेक के दाता हदरा पास
सतगुरु जी भजु मन अनहद सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सतगुरु गुरु जी भजु मन अविरल भक्ति विशुद्ध के दाने अविरल भक्ति शुद्ध के दाने परम विज्ञान सतगुरु जी भजु मन परम विज्ञान सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सत दो प्रेम 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 के दाता पदराता रह सतगुरु जी भजु मन पदराता रह सतगुरु जी भजु मन सतगुरु सतगुरु भजु मन निरमल युग कर जोड़ी के बिनवा निरमल कर जोड़ी के बिनवा घट पट को लिए सतगुरु जी भजु मन घट पट को गुरु जी भजु मन सतगुरु 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 जी भजु मन सतगुरु 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 जी भजु मन। श्री सद्गुरु महाराज की आरती संग सतगुरु के कीजय अंतर जोत हो तलक लीजय पा तत्व तन अग्नि जराए दीपक चा प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि पल पूला मूल कपूरा लशधर दीजय अक्षत नभता मुक्ताल पोहपमाल हार गुहे जैसे तपा मिष्टान मिठाई चंदन धूप सब चीज झलक झांझ मन में हीरा मधुर मधुर धुनि मृदंग सुने जय सर्व सुगंध उड़े चले आकाशा मधुकर कमल के धुनि दे जय निर्मल जो जरत घट माही देखत दृष्टि शशव चीज अधर धार अमृत बही आव शतमत द्वार जय पी पी होया
सुरत मत बाले चढ़ी चढ़े ओमगी मेरा सरी जय कोट भर चबिते जऊ जाली अलग पार लाग लगी जय छिन छिन सूरत अधर पर राख गुरु पर सार अगम रस पीज दम कत कड़क गुरु धाम उलटिया लल शीतन तेज आरती तन मैं की दृष्टि युगल कर सन्मुख दीज चमके बिन सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ति अनुपम लखली जय जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा निरखे जो तज दीज शब्द सुरत व्यास वो पड़ जाइए होने पड़ वो पड़ जाइए। ये आश्रम का नाम है महर्षि में ही योगा आश्रम योगिया पहाड़ धनवई बिशनपुर, जो दुमका जिला में पड़ता है। जो पूज्य पाद गुरु सेवी स्वामी भैरव दास जी महाराज के स्थापना किए हैं। देखिए यह उस श्री स्थापना 2015 ईस्वी में किए थे अपने निवास। इसका नाम रखा गया है महर्षि में ही स्मृति भवन। चिल्लो
ये पहाड़ है, पहाड़ पे भी हॉल है, ये कमरा है। आप लोग यहाँ आके दर्शन कर सकते हैं।